Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and now today I am going to start the topic temperate softwood forest, which is from chapter number 6, Life on the Earth. Temperate softwood forest, another type of vegetation which is common in the continental interior of high latitudes as well as high altitude. What is the meaning of latitude and altitude? Latitude, it is on the globe or on the earth surface when we move from equator to north pole, and altitude, it is the height from earth to space. Areas of Asia, Europe, North America, South America and New Zealand are known as taiga. These are also known as coniferous forest because they mainly have cone bearing trees. कहते हैं कनिफेरस फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोन बियरिंग ट्रीज होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोन बियरिंग और कनिफेरस फॉरेस्ट और कोन बियरिंग ट्रीज, एंड इज ऑल्सो नोन एज taiga. It means taiga forest is also known as coniferous forest and it is also known as temperate softwood forest. These trees, the trees are also conical in shape and have very soft wood. They have needle shaped leaf. The coniferous forests are more uniform and consist of pure stands of a new species or a few species. The main trees are pine, fir, spruce, larch etc. जो भी कनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, कनिफेरस फॉरेस्ट का जो ट्रीज होता है वो एग्जांपल में पाइन, फर, स्प्रूस एंड लार्च होगा. नेक्स्ट इस ट्री के बारे में क्या कह रहा है कि इसका जो वुड होता है या फिर जो इसका ट्री, ये जो ट्री होता है वो वेरी सॉफ्ट वुड होता है. नेक्स्ट इज द एनिमल kingdom. As mentioned earlier, along with plants, animals and also live in the biosphere. As mentioned earlier, along with the plants, animals also live in the biosphere. This can be bird, insect or animals. It means plants and animals life are live in togetherness, such as plant kingdom and animal kingdom, and it creates biosphere. Biosphere is a sphere where life exists. The animals vary from place to place because of the variation in the natural environment. Animals also vary from place to place as same as the plants species. The equatorial region receives heavy rainfall and the temperature is also high. The equatorial region temperature is very high and also receive heavy rainfall. With the result, tall and thick trees thrive here. ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, जहाँ पे रेनफॉल एंड टेम्परेचर ये दोनों हाई क्वांटिटी में, हाई अमाउंट में रिसीव होता है. एज सच द फॉरेस्ट इन द रीजन प्रोवाइड थिक वेजिटेशन कवर. थिक मीन्स डेंस वेजिटेशन कवर. दिस मेक it possible to have a large variety of animals here. The common animal found here are different types of monkeys, elephant, crocodile, insect eating animals like armadillos, snake etc. ये कहाँ के बारे में बता रहा है, किस जगह के एनिमल किंगडम के बारे में? ट्रॉपिकल रीजन, सॉरी इक्वेटोरियल रीजन के बारे में. ओके, दिस वन इज, इसको हाईलाइट करके रखेंगे. नेक्स्ट वन इज इन द ग्रासलैंड द नंबर ऑफ एनिमल्स इज लेस एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. इन द ग्रासलैंड एरिया द नंबर ऑफ एनिमल्स इज लेस. एनिमल का नंबर जो होता है वो लेस हो जाता है. क्यों? एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ लेस वेजिटेशन. ऑब्वियस, लेस वेजिटेशन कवर है तो एनिमल भी कम होंगे. कहाँ पे? ग्रासलैंड एरिया में. और एनिमल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे? इक्वेटोरियल रीजन में. नेक्स्ट इज द कॉमन एनिमल्स आर लायन, चीता, लेपर्ड, डियर, रैबिट etc. इन द पोलर रीजन. अब ये चीता, लायन, लेपर्ड, डियर, रैबिट कहाँ का? ये ग्रासलैंड कवर एरिया के बारे में बता रहे हैं एनिमल्स, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन के बारे में हम लोग पहले ही मंकी, एलिफेंट, क्रोकोडाइल एंड इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स, आर्माडिलोस, स्नेक ये सब पढ़ चुके थे. नेक्स्ट इज पोलर रीजन. इन द पोलर रीजन द एनिमल्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड. पोलर रीजन के एनिमल्स के बॉडी पे थिक कवर होता है, थिक फर होता है. क्यों? उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए. द कॉमन एनिमल फाउंड हेयर आर पेंगुइन, पोलर बियर, याक, फॉक्स etc. इतने सारे एनिमल जो है वो पोलर रीजन में पाए जाते हैं.
नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द इकोसिस्टम और ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। कैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो इकोसिस्टम को या तो डिस्टर्ब कर रहा होगा, या तो इम्बैलेंस कर रहा होगा, या फिर ह्यूमन बीइंग इफेक्ट डाल रहा होगा। ऑब्वियस ह्यूमन बीइंग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो इकोसिस्टम के साथ या फिर एनवायरनमेंट के साथ चेंज करता जाता है, हम कह सकते हैं कि फ़ायदा तो नहीं, वो इकोसिस्टम को या एनवायरनमेंट को नुकसान ही पहुंचाते होंगे। कम ऑन टू द नेक्स्ट। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, द एरियाज अंडर द फॉरेस्ट आर फास्ट डिक्रीजिंग। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, लोगों को इनहेबिटेंट्स के लिए जगह चाहिए होता है। इनहेबिटेंट्स के लिए वो क्या करते हैं, तो जंगल साफ करने लगते हैं। देन होगा क्या, जो फॉरेस्ट कवर एरिया होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। मैन हैज़ क्लियर्ड फॉरेस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर। मैन फॉरेस्ट क्यों क्लियर करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, ये उनका एक्सक्यूज़ है। नेक्स्ट इज हैबिटेशन, रहने के लिए, एंड द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन किया जाए या फॉरेस्ट को काटा जाए एग्रीकल्चर के लिए ही, कभी कभी खुद के बेनिफिट के लिए, कीमती लकड़ी को बेच देने के लिए, ड्यूरेबल टिम्बर को बेचने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। As a result, the ecological balance is highly disturbed all over the world. This is having a far-reaching effect on the human being. In the wildlife community, a few species like tiger, lion, etc. are already facing the danger of extinction. कहता है जितने भी एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आ चुके हैं, दोज हू बिकम टू बी एक्सटिंक्ट इज नोन एज इंडेंजर्ड, मतलब आगे चल के वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे कैटेगरी में लायंस एंड टाइगर्स भी आ चुके हैं। The pollution level in different countries is rising alarmingly. Alarmingly means it is a warning that there is a considerable rise in the global temperature. धीरे धीरे ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं। It is also going to be enhanced. A few glaciers have also started melting in the polar ice caps. पोलर आइस कैप में जहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट नहीं होता था वहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बदल रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे वहाँ पे भी हाई होता जा रहा है। दैट्स वाई पोलर रीजन ऑल्सो मेल्ट। इफ आइस कैप्स और आइस शीट्स और ग्लेशियर मेल्ट्स ऑफ द mountainous region, then it increase the level of river water or also the increasing the water table or groundwater level. Next is it is high time that the man should realize his mistake. ये ज़रूरी है कि हम ह्यूमन बीइंग जो है अपनी गलती को पहचान ले कि उसने क्या क्या गलतियाँ की हैं, और बेहतर है कि वो उस गलती को सुधारना शुरू कर दें। स्टॉप टेम्परिंग विद द नेचर, नेचर के साथ टेम्पर करना या फिर नेचर को नुकसान पहुंचाना, नेचर को हर्ट करना। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, एफॉरेस्टेशन शुड बी टेकन अप ऑन अ लार्ज स्केल। यहाँ से पॉइंट अलग हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज यहाँ, सेकंड वन इज इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एफॉरेस्टेशन शुड बी टेकन अप ऑन अ लार्ज स्केल। हंटिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड। For the preservation of different animal species, the government has set up the wildlife sanctuary, national parks and biosphere reserves. ये है गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कदम या फिर जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए। नेक्स्ट इज these are a few measures to maintain ecological balance of the environment. Many non-governmental organizations have also come forward to help in the protecting different types of animal species. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीसीज को बचाने के लिए कभी कभी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट इज डू यू नो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन आर यूज फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। कंजर्वेशन रिफर्स टू वाइज यूज एंड प्रिजर्वेशन रिफर्स टू नॉन यूज। कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना, बचाना, मतलब यूज़ करे लेकिन सतर्कता के साथ और जुडिशियसली। बट प्रिजर्वेशन मीन्स नो यूज़, प्रिजर्व करना मतलब उसको प्रिजर्व करके रख दिया गया है, अब उसको यूज़ नहीं करेंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को उसको बचा कर रखने के लिए दो वर्ड यूज़ किया गया, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन वाइज यूज़ एंड कंजर्वेशन नो यूज़। नेक्स्ट इस कीवर्ड है, सारा वर्ड इसमें जाना पहचाना ही है। कोई भी अगर
स्ट्रेंज वर्ड लगे तो वो आप मेरे को मैसेज करोगे, क्वेरीज में बताओगे, ओके, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लिखोगे। और अब इंटरनल क्वेश्चन अगर किसी के पास ऐसा हो तो वो वीडियो देखने के बाद अपना इंटरनल क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है। कम ऑन टू द क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू इकोलॉजिकल बैलेंस? इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए थ्रेट या प्रॉब्लम कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ होगा? ह्यूमन बींग को इनहेबिटेंट्स होना चाहिए या फिर उनको हैबिटेट चाहिए, जगह चाहिए रहने के लिए, तो वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को प्रमोट करेंगे। टैगा इज अ सॉफ्टवुड फॉरेस्ट और अ सॉफ्टवुड ट्री। टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट का एग्जांपल टैगा फॉरेस्ट है और इसी टैगा फॉरेस्ट का एक और नाम है कनिफेरस फॉरेस्ट। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियड प्लांट एंड एनिमल लाइफ द गवर्नमेंट हैज सेट अप वेरियस नेशनल पार्क। नेशनल पार्क सेटअप किया गया है एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। नेक्स्ट इज मॉसेस एंड लीचेंस आर द कॉमनली फाउंड वेजिटेशन इन द पोलर रीजन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोलर रीजन मॉसेस एंड लीचेंस जैसा वेजिटेशन होता है। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ग्रासलैंड और द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड दी प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड को। नेक्स्ट वन इज फिल इन दी ब्लैंक्स। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर इन दी वाटर बॉडीज। सबसे पहला वाइल्ड लाइफ या लाइफ जो था वो एग्जिस्ट हुआ था अर्थ में, कहाँ पे? वाटर बॉडीज में। द लिविंग जोन ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज नोन एज बायोस्फीयर। जो अर्थ का लिविंग जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है, इट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। द ह्यूमन बींग हु फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वेयर नोन एज होमोसेपियंस। ह्यूमन बींग वो पहला है जो कि पहली बार अर्थ पे अपीयर हुआ था, उस किस नाम से? होमोसेपियंस के नाम से। द टैगा वेजिटेशन इज ऑल्सो नोन एज कनिफेरस फॉरेस्ट विच हैव कॉनिकल लीव्स। The plant prepare their own food and are known as food factories of the biosphere. प्लांट जो खुद से अपना फूड प्रोड्यूस करता है जिस चीज़ से मिलकर, वो फूड फैक्ट्रीज कहलाता है। कम ऑन टू द नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। In the grassland, the number of animals is less as compared to those in the equatorial forest. Yes, it is true, only because of less vegetation cover. Afforestation cows rise in the pollution level in the atmosphere. It is false, because afforestation cows not rise in pollution, it reduces the pollution. Tiger and lion are the endangered species in India. Yes, it is true. Pampas are the temperate grassland in Australia. False, वेल्स होता है. Next is insect eating animals are mostly common found in dense forest of the equatorial region. Yes, it is true. Name the major types of vegetation of the world. Come on to the page number 41. From here we write major types of vegetation found in the world: tropical hardwood forest, grassland, desert and temperate softwood forest. Name some common plant found in cold and hot desert region of the world. Come on to the topic of hot and cold desert. The common plant found in hot and cold desert are: in hot desert, cactus, shrubs and bushes, and in cold desert, mosses, lichens, etc. बस नहीं. Come on to the question number 3. What are the major component of ecosystem? The plant kingdom, the animal kingdom and the human beings. Next is give some example of trees having needle shaped leaf. कौन कौन सा लीव होगा जो कॉनिकल शेप लीव होता है? पाइन, फर, स्प्रूस, larch. And next one is why do animals in the polar region have thick fur on their bodies? To protect them from the extreme cold. And next is long question answer. Why are equatorial forests known as evergreen forest? Because they receive rainfall throughout the year. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाले में या एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले में आपको ये आंसर मिलेगा, दैट दे रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर अप टू 200 सेंटीमीटर. गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ ट्रीज फाउंड देयर. कौन कौन सा ट्री पाया जाता है? तो इबोनी, महोगनी, रोजवुड, बस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट रोल डू प्लांट प्ले इन इकोलॉजिकल बैलेंस? प्लांट क्या रोल प्ले करता है? तो सबसे पहले तो वो सनलाइट, वाटर
और विंड के हेल्प से खुद से फूड तैयार करता है विदाउट एनी हेल्प। नेक्स्ट वन इज सिर्फ खुद के लिए ही फूड तैयार नहीं करता है बल्कि एनिमल्स लाइफ के लिए एंड ह्यूमन बींग्स के लिए भी फूड तैयार करता है वो। इट मीन्स प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर द एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स, वेयर एज animals also provide soil nutrients with their remains which are helpful for the growth of plants. And now human beings consume both plant food as well as animal food. It means human beings also depend on plant kingdom. Distinguish between tropical and temperate grassland or differences between tropical and temperate grassland. याद होगा जब ये टॉपिक पढ़ाए थे तो आपको बताए भी थे कि हो सकता है ये क्वेश्चन बुक में हो। क्यों? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जनरली रहता है कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिए दो तरह का, अगर एक ही एरिया के दो तरह के दो चीज़ हैं तो उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने को आता है। हो सकता है कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट के बीच में भी डिफ्रेंशिएट करने को आ जाए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाए। यहाँ पे अभी ग्रासलैंड के लिए आया है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। Tropical grassland, they are located between the equatorial forest and hot in both the hemisphere. And second one is these grassland receive about 100 centimeter rainfall और उसमें हम लोग क्या पढ़े थे 25 to 75 centimeter rainfall. Next is the grasses of these forests are very rough, thick and tall. वहाँ पे grasses जो था वो soft था and also receive the snowfall in temperate grassland. Example is campus in Brazil and savanna in southwest Africa. Now come on to the temperate grassland. These grasslands are located in the temperate zone and in the interior of the continent. Rainfall here and they sometimes receive snowfall and the forests are short and soft. And areas prairies North America, pampas South America, downs Australia and wild South Africa. यहाँ पे हम लोग जो ये क्वेश्चन देखे थे ट्रू एंड फॉल्स का, इसका आंसर वहाँ पे है पैम्पास आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए डाउन्स होता है, ठीक है, पैम्पास नहीं। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट का भी हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। हॉट डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, कोल्ड डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द पोलर बेल्ट। नेक्स्ट इज टेम्परेचर आर वेरी हाई थ्रू आउट द ईयर, टेम्परेचर आर वेरी लो थ्रू आउट द ईयर। एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट अफ्रीका, थार डेजर्ट इंडिया। वहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा साइबेरिया रसिया एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कनाडा। नेक्स्ट इज प्लांट कैक्टस, श्रब्स, बुशेस और वहाँ पे एग्जाम्पल मोजेज एंड लीजेंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का वेरियस प्रॉब्लम्स क्या है, तो ओनली ऑल द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, डिफॉरेस्टेशन एंड क्रिएटिंग पॉल्यूशन, एंड व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक टू सॉल्व देम। कम ऑन टू द पेज नंबर 44 and 45. First one is man should realize his mistake and stop tampering with the nature. First point. Second is in order to maintain the ecological balance, afforestation should be taken upon a large scale. Number 3, hunting of animals should be strictly banned. Number 4, for the preservation of different animal species, the government has set up wild sanctuaries, wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves. And next is there are few measures to maintain ecological balance of the environment. Many non-governmental organizations also proceed or also give hard work and give contribution, have to also come forward to help in the protection different types of animal species. तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आंसर था वो हम लोगों ने देख लिया। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर से अगर और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मैसेज
छोड़ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। जैसे इससे पहले वीडियो के क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे 2 क्वेश्चन, उसका काफ़ी अच्छे तरीके से कुछ बच्चों ने जवाब दिया है। इट इज़ सो अप्रिसिएबल एंड एक्सीलेंट एंड कीप इट अप। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।